warm welcome. Let us begin with our session, today's session. Hands in Namaskar Mudra, eyes gently closed. Relax yourself. Be aware of yourself, aware of your breathing. श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे सहज होने दें. पूरी तरह से समर्पित हो जाइए. 3 ओंकार करते हैं. गहरी सांस ले. रखो पर हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें. बैक. Keep your eyes closed and enjoy the vibrations. धीरे धीरे आंखों को खोलें and welcome once again. So friends, let us begin with our session. धीरे से पैरों को स्ट्रेच करते हुए टोज को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स योर टोज 5 to 6 times. फिर एक एक पैर का एंकल स्ट्रेच कीजिए. राइट लेग लेफ्ट लेग एंकल स्ट्रेच. दोनों पैरों को थोड़ा अलग रखते हुए इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द लेग्स. फिर पैरों को जोड़ो और रोटेशन. and do reverse. Knee tapping. फिर पैरों में अंतर रखेंगे and let us do first twisting. Twisting right and left. Bhunamanasana. Right left. 1, 2, 3, 4 and relax. Okay. पैरों को मोड़ के नौका दिया. फॉरवर्ड एंड बैक. 1, 2, 3, 4. अब रिवर्स करो. 4, 3, 2, 1. Okay. Relax. पैरों में अंदर रखिए. Let us do twisting and bending forward. ऐसे हाथों को रखेंगे. Twist and bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now hold the right leg toes or calf muscles and bend down. Maintain करो right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. घुटने को उठाना नहीं. Now hold the left and bend down. 1, 2, 3, 4,
करेंगे, पैरों को मोड़े इस तरह से, फ्लैपिंग द लेग्स 25 टाइम्स, बैक स्ट्रेट, अब होल्ड करके बैकवर्ड आर्चिंग मेंटेन, 1 2 3 4 5, अदर साइड 1 2 3 4 5, join the legs together, hold and hug tightly, maintain, 1 chin up, 2 3 4 5, now hold the knees, press down and again up, 1, soles touch and knee down, 2 3 4 and 5. Relax. Okay. Now let us do front कलाई को टोज को टच करना, फॉरवर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, हाथों को पीछे रखिए एंड नाउ जेंटली राइट लेग अप, लुक अप, 1 2 3 4 5, चेंज, लेफ्ट लेग अप, 1 2 3 4 5. अब दोनों पैरों को उठा के मेंटेन करेंगे, स्लोली मेंटेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड स्लोली डाउन. ओके, अब सुखासन में बैठेंगे एंड स्लाइड योर हैंड्स टू द साइड, राइट फोरआर्म ऑन द मैट, लेफ्ट हैंड अप, बेंड डाउन टू द राइट साइड, 1 2 3 4 5 6, फिर से लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड नाउ जस्ट डू सिंपल रोटेशन, रिलैक्सिंग द हिप्स, 1 2 3 4 and reverse, 4 3 2 and 1. Okay, relax, very good. So now we will gently stand in our place, धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. Okay, and standing we will do some standing practices. पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, hands on the waist. Okay, and turn the head right and left, 1 2 3 4 5, back and forward, 1 2 3 4 5. ओके, अगर वर्टिको है तो रोटेशन मत करो, रोटेशन, 1 reverse, 1 2 and reverse, 2 3 and reverse, 3. Okay, yes, शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ा सा शोल्डर, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कलाई को पकड़ना है, रिस्ट को, हैंड एल्बो बिहाइंड द हेड, सीधी गर्दन सीधी, 1 गर्दन सीधी, 2 3 4, relax. Okay, hands are stretched at shoulder level and now just palms upwards, 1 2 3 4 5. अब 5 ऐसे पकड़ो and then back to forward, 1 2 3 4, do reverse, 4 3 2 1, stretch up and relax. Okay, right hand to the left side, press with the left elbow, turn the head to the right, 1 2 3 4 5, change it, left hand to the right side, press with the right hand elbow, turn the head left, 1 2 3 4 5 and relax. Okay, now पैरों में अंतर रखेंगे, स्क्वाट्स करते हैं. So start, 1 2 3 4
Then we will do stretches. Alternate hand stretch, heels up. Okay, ऐसे हाथ नीचे. Palms are facing back. Right hand up, heels up. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Okay, relax. पैरों में अंतर रखो, हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच करें. टर्न बैक. 1, 2, 3, 4, 5. Palms on the knees, stretching down. 1, 2, 3, 4, 5. हाथों को कंधों के लेवल में एंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. ऐसे एंड ट्विस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come back. Okay. Now hands को ऐसे शोल्डर लेवल पे रखें. राइट नी को बेंड करना है एंड टच द राइट फुट आउटसाइड. राइट नी बेंड, टच द लेफ्ट palm to the right knee. 1, 3 बार करो. 2, 3. Change. Right foot in, left foot point out. Now left knee bend, right palm touch the left foot. 1, 2, 3, 4. Now same way. Relax, and now same way we will just move the right leg out. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Swinging forward and back. 1, 2, 3, 4. Change करो. पैर को टच नहीं कर रहा है. 1, 2, 3, 4. Relax. Okay. Now hands are stretched to shoulder, chest level. Touch the knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. So let us do the breathing practice. पैर में अंतर रखें, हाथ आगे. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. और एक बार सांस ले और सांस बाहर. Okay? Yes. Now keep together. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. Okay? Now slow jogging, marching से directly jogging पे आ जाइए. Taking your hands by the sides. Sides, down. हाथों को आगे से नीचे ले आओ. Shaking your wrist joint. साइड से नीचे. हाथों को सामने, साइडवेज. फॉरवर्ड. ट्विस्टिंग. And slow down. Okay, you can stop. Palms on the knees. Breathe in, breathe out. सांस ले बाहर. In, out. Last, in, out. Touch your toes, straighten your knees, relax your hands and head. Come up, backward arch.
twisting, और अब विश्राम करें, रिलैक्स, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। ओके, सो विल गो फॉर द 10 स्टेप सूर्य नमस्कार। बैठ के आगे खड़े हैं आप, 6 करेंगे स्लो स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Relax. Relax for a while. Breathe in, breathe out. अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वी आर यूज्ड टू दिस 10 स्टेप सो मेनी टाइम्स, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अगेन नॉट कंपल्सरी, अगर आपको स्पीड नहीं होता है आप स्लो भी कर सकते हैं। सो एज पर योर कैपेसिटी यू विल डू। रेडी? 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. So we completed now one set and that is 12 सूर्य नमस्कार। धीरे से बैठ जाइए और लेट जाइए। रिलैक्स ऑन योर बैक, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। Breathe in, breathe out, deep and long from the nose. Breathe in from the nose, breathe out from the mouth. Feel the faster relaxation. So not much resting because इसके बाद ही रेस्ट करेंगे एब्डोमेन के बाद। तो आपको पैरों को उठाना है 90 and 60, one leg 90 one leg 60। Now those who cannot, आप हाथों को कमर के नीचे रखेंगे, मतलब इस तरह से
हाथों को रख के 90 एंड 60 पैर को रख सकते हैं, फिर इंटरचेंज भी करना है। आइडियली जिनको कोई तकलीफ नहीं है ऊपर लेंगे। ओके, सो फील द मोर इफेक्ट ऑन योर एब्डोमेन दोज हु कैन टेक द हैंड्स अबव द हेड। जिनको बैक पेन है हाथों को पीछे रखें। सो रेडी ऑल ऑफ यू, राइट लेग टू 90, लेफ्ट लेग टू 60। अगर पैर नहीं है सीधा तो हाथ से सीधा करें। लेफ्ट लेग 60 डिग्री रखें और हाथों को ऊपर, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज योर लेग, लेफ्ट लेग 90, राइट 60, नी स्ट्रेट, both the knees straight, maintain। 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़ो, पैरों को ज्वाइन करो 90 में, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। रिलैक्स, सी दैट यू आर नॉट होल्डिंग योर ब्रेथ। सांसों को लेना भूलना मत, सांसों को लेते रहना। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एंड टर्न ऑन योर एब्डोमेन। एक एब्डोमेन प्लैंक में करेंगे हम, ट्विस्टिंग इन प्लैंक। इस तरह से हाथों को रखो, टोज इनवर्ड्स, हाथ ऐसे है, कम अप टू द हाफ प्लैंक। ओके, और स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ओके, और अब आप शवासन की स्थिति में लेट जाइए। आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आपको सिर्फ सूचनाओं को सुनना है और आराम को महसूस करना है। सो आप शवासन की स्थिति में आराम कीजिए, रिलैक्स। शवासन के लिए आरामदायक स्थिति ले लो, पैरों में अंतर, हाथ दूर है और आंखें बंद। कॉन्शियसली रिलैक्स एवरी बॉडी पार्ट, फील द रिलैक्सेशन एवरीवेयर। पूरा शरीर ढीला है। रिलैक्स योर लेग्स, पैरों को स्वयं सूचना दे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स योर हैंड्स, मन ही मन दोनों हाथों को भी आप गाइड करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर ध्यान पीठ पर ले आए एंड forget and relax all the tensions and worries. Relax your lower back, middle back, upper back. Consciously relax your head, back of the head, the front, top of the head, forehead. Relax all your facial tissues, facial parts. Relax the neck. And now bring the awareness to the front. Consciously relax your chest and abdomen. शरीर के आगे वाले हिस्से पर ध्यान है। चेहरा, गर्दन, छाती और पेट बिल्कुल ढीला है, सभी मांसपेशियां ढीली है। रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर अब ढीला है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, आने वाली सांस और जाने वाली सांस को देखना है, महसूस करना है। आने वाली सांस ठंडी है, जाने वाली सांस गर्म है। आने वाली सांस से ऊर्जा मिल रही है, जाने वाली सांस से गहराई में आराम मिल रहा है। सांसों को देखना है और महसूस करना है। धीरे धीरे सामान्य गति में सांसें चल रही है, शिथिल है, और पूरे शरीर में आराम को महसूस करें। और कुछ पलों के लिए ऐसे ही शांत बने रहे, कोई सूचना नहीं, जस्ट रिलैक्स। तो दोस्तों, ये शवासन बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से विश्राम हो चुका है। धीरे धीरे अब आपको शवासन से बाहर आना है, हमें आसन करने हैं।
तो अपने पैरों के पंजों को ज़रा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को ज़रा हिलाएं, सिर को घुमाएं राइट लेफ्ट, दोनों पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और अच्छा सा स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच को रिलीज करना है, पैरों को मोड़े, आप एक करवट पे आके बैठ जाइए। सिट इन द रिलैक्स पोजिशन दिस वे। Gently open your eyes. Okay friends, so now we are going for asanas and pranayams. तो आसन्स में हम पहला आसन करेंगे वक्रासन। वक्र यानी ट्विस्ट, जो ट्विस्टिंग आसन है, तो सिंपल सा आसन है पर अच्छा सा ट्विस्ट देना है इसमें। तो इसके लिए आपको इस तरह से बैठना है, पैरों को स्ट्रेच करते हुए। अब राइट लेग को फोल्ड करो, राइट नी के नीचे से पकड़ लीजिए, बैक को सीधा ऐसे है ना तो सीधे हो जाएगी क्योंकि अपने घुटने के नीचे से पकड़ा है। बाएं हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए ऐसे, और इस हाथ को दाहिने घुटने के बाहर से लेके एंकल को पकड़ें। अगर ये नहीं होता है तो ऐसे पकड़ो, ये भी कंफर्टेबल है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एल्बो से आपने घुटने को प्रेस किया। सो विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, प्रेस एंड होल्ड। फिर यहाँ पे हाथ ऐसे रखा, ये जो हाथ है वो अपने रीढ़ की हड्डी के नज़दीक, दूर नहीं रखना है, ऐसे नज़दीक, और सिर को घुमा दीजिए राइट साइड। तो राइट लेग मोड़ा है, लेफ्ट हैंड से ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, और राइट हैंड पीछे, दाहिना हाथ पीछे। पीछे देखना है, सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5। फिर गर्दन सीधी, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके घुटने को पकड़े, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करें, रिलैक्स करें। ओके, सो नाउ आई शो यू फ्रॉम द अदर साइड। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके सेम दूसरी तरफ से भी करना है। तो बाएं लेग को मोड़े, बाएं घुटने को नीचे से पकड़े, बैक स्ट्रेट। राइट हैंड विल गो अप आउटर साइड, ये नहीं होता है ऐसे, ये भी नहीं होता है ऐसे। ओके, प्रेशर आना चाहिए पेट पर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे आ गए, ये पैर को सीधा ही रखो, लेफ्ट हाथ पीछे स्पाइन के नज़दीक, दूर नहीं, नज़दीक। टर्न द हेड लेफ्ट, मेंटेन, 1 2 3 4 5। गर्दन सीधी, रिलीज बैक हैंड, रिलैक्स द फ्रंट हैंड एंड रिलैक्स। तो ट्विस्टिंग करते समय थाई का प्रेशर हमारे उस तरफ के पेट पर आता है, ऐसा प्रेशर आ रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग द टोन ऑफ द एब्डोमेन मसल्स। सो आपको बेनिफिट क्या है इसमें, वक्रासन में सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, क्योंकि आप ट्विस्ट कर लो। वक्रासन का इमीडिएट इफेक्ट इज ऑन द स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी स्टिफनेस नहीं आएगा, कभी बैक पेन नहीं होगा अगर आपने रेगुलरली वक्रासन किया। सेकेंडली, आप प्रेशर दे रहे हो इस तरह से, और ये हाथ से और प्रेशर देने की कोशिश करें पेट पर, तो पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको स्टिमुलेशन मिलता है। अगर वो ऑर्गन्स कम काम कर रहे हैं, वीक हो चुके हैं, तो उनका स्टिमुलेशन मिलता है, साथ ही साथ एब्डोमेन की चर्बी कम होती है। आप दोनों तरफ से करते हो तो जहाँ पे पैंक्रियाज है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन पे अच्छा सा प्रेशर आता है और उनका कार्य अच्छा होता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है, जिसका पेट साफ नहीं होता उनके लिए बेनिफिशियल है, और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो डायबिटीज़ वालों ने तो इसको छोड़ना नहीं है, रेगुलरली करना है। ओके, सो यू सी इट हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। तो नेक की इश्यूज़ हैं, स्पाइनल की इश्यूज़ है, वो दूर हो जाती हैं, और एब्डोमेन की जो भी इश्यूज़ है वो दूर होती है। और आप पीछे देखते हो इसीलिए आपके लंग्स खुलते हैं और आपकी ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाती है। सो लेट अस डू वन मोर राउंड, आई विल शो इट फ्रॉम द फ्रंट। सीधे बैठे हैं, राइट लेग को फोल्ड किया, राइट नी को नीचे से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड अप, outer side, hold the ankle, right hand goes back, turn completely back. सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5 6। गर्दन सीधी, फिर नीचे से पीछे से हाथ को छोड़ के घुटने को पकड़े, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करें, पैर को भी रिलैक्स करें। लेफ्ट हैंड फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड, और यहाँ पे पैर बहुत नज़दीक नहीं लेना है, इसलिए घुटने के बाजू में, मतलब ये जो फुट है वो घुटने के बाजू में ऐसे चिपका हुआ नहीं है, ध्यान रखें। सो यहाँ पे है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट नी को पकड़ा, हैंड स्ट्रेट एंड आउटर साइड, होल्ड द एंकल, लेफ्ट हैंड गोज बैक, टर्न बैक, मेंटेन, 1 2 3 4 5 6। धीरे से सीधे हो जाइए, पीछे से रिलीज, आगे से रिलीज। क्लोज योर आइज एंड आई टोल्ड यू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वक्रासन, इमेजिन एंड फील दैट। दैट वॉज अ नाइस प्रैक्टिस ऑफ वक्रासन। अब हम खड़े होने वाला अभ्यास करेंगे, तो धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर योर नीज। अभी हम जो करने जा रहे हैं उठकर आसन,
उत्कट मतलब उखड़े बैठना। सो यहाँ पे हम चेयर पोजीशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि हम कुर्सी पे बैठने वाले हैं वैसे। तो इसमें पैरों में डिस्टेंस रहेगा, ये थाइस पे ज़्यादा काम करेगा, जिसे हम क्वाड्रिसेप मसल्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, पैरों में डिस्टेंस रखें लगभग आपके हिप के बराबर, यानी 1 फुट की दूरी है। और ऐसे खड़े हैं, अब बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए ना, लूज फिस्ट बनाए हाथों की। और अभी आप हिप्स को देखो, ऐसे ऐसे नहीं जाना सीधे, हिप्स को बाहर पुश करो और फिर ऐसे जैसे कि आप कुर्सी में बैठे वाले, फिर पीठ से सीधे हो जाइए। और चेक करो कि आपके नीज और आपके टोज ये एक लाइन में है, ये बाहर नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में है। और फिर पीठ को धीरे धीरे सीधा करो एंड लुक फॉरवर्ड, मेंटेन 1 2 3 4 5, धीरे से सीधे। सो व्हेन यू डू दैट वे यू फील द पुल ऑन योर थाइस। अगर हमें नॉर्मली भी किया इतना नहीं आएगा, पर जब आप हिप्स को पीछे लेके आपके घुटने और आपके टोज एक लाइन में रहेंगे, तो अगर पैर नज़दीक है तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए पैरों में डिस्टेंस रख के करना। तो इसमें बराबर से ये क्वाड्रिसेप मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका नी जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो नी कैप को होल्ड करने वाला ये जॉइंट मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपके ये घुटने भी हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस अच्छी है, जिनको अगर नी पेन है उन्होंने करना है, नी पेन नहीं है तो भी करो, क्योंकि नी इज योर वेट बेयरिंग जॉइंट, हमारे शरीर का पूरा वजन घुटनों पर आता है, इसीलिए वजन तो हमें हमेशा मेंटेन रखना है, कम रखना है, ताकि घुटने हिस्से नहीं। और सेकेंडली ऐसे कुछ अभ्यास करने हैं जिससे आपके जो सपोर्टिंग मसल्स है, घुटने के जॉइंट को जो सपोर्ट करने वाले मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो वो नी जॉइंट को सरकने नहीं देंगे। ओके, आगे चल के उम्र जैसे बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। दैट इज वन मेजर बेनिफिट। एंड सेकेंडली यू आर स्ट्रेंथनिंग योर बैक, क्योंकि आप कोशिश करें उसमें रुकने की, तो व्हाट हैपेंस, वर्किंग ऑन योर बैक मसल्स, सो योर बैक मसल्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स आपके वजन आपका पैरों पर भी आप डालने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर ट्राइंग टू मेंटेन एंड दैट इज वाई strengthening your back. So these two are the major benefits. Let us do one more round. पैरों में अंदर रखो ताकि आपका बैलेंस अच्छा आएगा, हाथों को आगे ले, लूज फिस्ट बनाए, हिप्स डाउन एंड बेंड। लुक एट योर नीज एंड टोज आर इन वन लाइन। ऐसे है, थोड़ा थोड़ा सीधे होने की कोशिश करो, जितना सीधे हो सकते हैं। सामने देखो एक पॉइंट को, मेंटेन 1 2 3 4 5 6 एंड जेंटली कम अप, रिलैक्स। ओके, अब आंखों को बंद करके विश्राम स्थिति, रिलैक्स होगा। आफ्टर दिस 2 राउंड्स लेट अस गो फॉर अनदर प्रैक्टिस। पेट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है और वो है नौकासन। इसको ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, पेट पर की चर्बी भी कम होगी। नौकासन, बोट पोज। आई एम टेकिंग वेरी सिंपल आसन्स, सो नॉट टू वरी। कोशिश करो कि सभी कर पाएंगे। और जिनको भी नौकासन करने में हाथों को आगे लेके ऐसे करना है ना, तो ये मुश्किल लगता है, तो हाथों को साइड में लेके भी आप उठ सकते हो। लेग्स को उठाना है, हाथों को भी उठाना और सिर को भी। रिलैक्स फर्स्ट। सो लेट अस बी रेडी फॉर नौकासन, बोट पोज। पैरों को जोड़ो, हाथ सामने, माथा बैठ के। रेज योर एक्सट्रीमिटीज, हेड, लेग्स पूरा उठाओ। सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5, come down, relax. So नौकासन एक्चुअली स्पाइन के लिए बेनिफिशियल है, जिनको भी कोई भी रीढ़ की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, या पीठ में हमेशा दर्द रहता है, आर्थराइटिस जो है, उन लोगों को ये करना ही करना है रेगुलरली। पर आपको हार्ड मैट पे, मतलब मैट पे करना है, नॉट ऑन योर बेड। इट शुड बी लाइक अ मैट, प्रॉपर मैट ऑन द फ्लोर। इट विल रियली हेल्प टू स्ट्रेंथन योर बैक। सबसे पहला बेनिफिट वो है। सेकेंडली, आप पेट पर हो तो नेचुरली पेट के ऑर्गन्स को मसाज मिल रहा है, टमी फैट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, डायबिटीज़ वालों को रियली फायदेमंद है, एसिडिटी की शिकायत है उन लोगों ने भी इसको रेगुलरली करना है, IBS की प्रॉब्लम है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए तो रियली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिमूव योर इनडाइजेशन। कॉमन प्रॉब्लम है आजकल इनडाइजेशन का, बहुत ज़्यादा गैसेज या ब्लोटिंग बना रहता है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, तो उन लोगों ने करना है। बिकॉज कभी ऐसा लगता है कि अभी खाना खाया है, फिर कुछ देर के बाद 4 5 6 घंटे भी होते तो भी वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो यू डोंट फील हंग्री, लॉस ऑफ एपिटाइट है या कुछ है, तो डाइजेशन बहुत स्लगिश या वीक है, उन लोगों ने भी ये प्रैक्टिस को रेगुलर बेस में करना है। नौकासन वेरी सिंपल, डू इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। इफ यू डू नॉट, इफ यू हैव शोल्डर इश्यूज, हाथों को उठा नहीं सकते तो साइड में रखिए।
सो एक राउंड ज़्यादा देर मेंटेन करेंगे। इसमें अक्सर सांसें रुक जाती है क्योंकि आप उठा रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, तो सांसें रुकती हैं। सी दैट यू आर कॉन्शियसली ब्रीदिंग, सांसें सहज सामान्य चल रही है। सो वन मोर राउंड, कम अप एंड मेंटेन, 1 2 नी स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8, come down, relax, relax in Makarasana and try to enjoy the benefits of Naukasana. एक करवट पे आ जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे। So now we are going for the last asana. इन सुपाइन पोजीशन में जो आसन है बहुत अच्छा प्रैक्टिस है हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स के लिए। जैसे हमने क्वाड्रिसेप्स पर वर्क किया उत्कड़ासन में, अब हम थाई बैक मसल्स, पेल्विक मसल्स, नीज एंड बैक मसल्स पे वर्क करेंगे। ओके, सो ओवरऑल पूरे शरीर की मसल्स और जॉइंट्स के लिए आसन है, उसका नाम है उत्तान भद्रासन, स्ट्रेचिंग इन भद्र, भद्र इज बटरफ्लाई। ओके, तो इसके लिए आप रिलैक्स हो जाइए। वेरी नाइस प्रैक्टिस, और ये एक रिलैक्सिंग आसन भी है। पैरों को मोड़े और एड़ियों को पहले आपने नितंब से चिपका देना है, इतना चिपकना है। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर है। अब दोनों पैरों के सोल्स को चिपका दो, मतलब जैसे पैरों से नमस्कार मुद्रा कर रहे हैं और पैरों को नजदीक रखते हुए ही नीचे रखें, मतलब आपकी एड़ियाँ आपके पैरों को चिपक रहे, बॉडी को चिपक रहे। और दोनों पैरों से नमस्कार मुद्रा किया, घुटनों को नीचे प्रेस करो। ओके, अब घुटनों को प्रेस करते हैं वैसे ही यहाँ पे गैप आने लगती है। सो लेट इट हैपन, आपका सिर टच है और आपकी हिप्स टच है, और ये जो पोर्शन है यहाँ से मेरा हाथ आराम से नीचे जा रहा है, मतलब मेरे स्पाइन में एक कर्वेचर आ रहा है, दैट इज द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, हाथों से नमस्कार करें, घुटनों को नीचे प्रेस करें, हाथों को ऊपर खींचना है और मेंटेन करो, आंखों को बंद रखें। 1 2 3 4 5, अब आंखों को खोलें, स्लोली हैंड्स बाय द साइड, दोनों घुटनों को जोड़ो and relax your legs. Okay, so relax. It's a very effective and nice practice where it strengthens your pelvic floor, it strengthens your lower back and also gives a nice shape to your back because it is giving the normal curvature. So पीठ की कोई समस्या है या bulkiness in the back, वो दूर हो जाएगा। pelvic floor के lower organs जैसे constipation की वजह से piles, fissures होते हैं या पेट साफ नहीं होता है, bowel, the stools are very hard, वो सब दूर हो जाता है इससे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज है, जैसे कि फिब्रॉइड सिस्ट है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है आपका बॉडी का, तो टोनिंग अप ऑफ द चेस्ट मसल्स, इम्प्रूविंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। और स्पाइन का क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हिप बोन्स का या तो पेल्विक रीजन का हॉरिजॉन्टल। सो एक वर्टिकल स्ट्रेच और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आपको मिल रहा है। Relax. I hope you understood what I want to say. Let us do one more round. Okay, for a pair. तो पैरों को मोड़ेंगे, अच्छी तरह से पहले पैरों को चिपका दो and then join the soles and drop the knees down. देखो कि एरिया आपकी चिपकी हुई है, एक दूसरे से भी सोल्स टच है और आपकी एरिया आपके नितंब से चिपकी हुई है। हाथों को सिर के ऊपर ले जाओ, आपके अपर आर्म्स कानों को टच हो जाएंगे, चिपके हुए हैं अपर आर्म्स यानी भुजाएं कानों को टच है। हाथों को ऊपर खींचे, घुटनों को नीचे प्रेस करें। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग आसन है। सांसों को सहज गति में लेते रहना है। मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8, आंखों को खोले, स्लोली हैंड्स बाय द साइड, जॉइन द नीज एंड रिलैक्स योर लेग्स, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर, ट्राई टू रिकलेक्ट द बेनिफिट्स व्हिच आई टोल्ड यू। अब धीरे से पैरों को मोड़े, आराम से आप एक करवट पे आके बैठ जाइए। ओके, सो फ्रेंड्स वी आर डन विद ऑल दीज आसनास। मैं क्विकली आपको रिवाइज करा दूं जब तक आप सेटल हो रहे हैं। हमने बैठ के वक्रासन किया, वेरी नाइस प्रैक्टिस, दैट वाज ट्विस्टिंग फॉर द स्पाइन। फिर हमने खड़े होके उत्कट आसन किया जिसे हम चेयर पोज भी कहते हैं, और पेट के बल लेट के हमने किया है a nice practice on the abdomen, that is नौकासन, and पीठ के बल लेट के हमने किया है उत्तम भद्रासन। इन आसनों के बाद अब हम थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ते हैं।
So just directly sit in ध्यान मुद्रा. Eyes are closed. Observe your breathing. सांसों पर ध्यान दें. श्वास प्रश्वास की गति धीरे से सहज है. आसनों के बाद कोई थकान नहीं है. बैठे. So now we are ready for our practice of Swashan Makshudi. राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. लेफ्ट से फोर्सफुली ब्रीद आउट करें. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ को नीचे रखें. नाक को साफ करें. देन क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. राइट नॉस्ट्रिल ब्रीद आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे. नाक को साफ कर सकते हैं. Now hands in drone mudra. Both the nostrils breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Close the eyes. Keep the eyes closed and enjoy the effects of Swashan Makshudi. तीनों राउंड्स मिलके एक साइकिल हो जाता है. We move on for the another practice or another kriya, that is Kapalbhati. हम 120 स्ट्रोक्स करेंगे. जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो रुक सकते हैं, अपने स्पीड के अनुसार करें. I am going to give you 120 counts of Kapalbhati. So fix your chest, see that your chest is not moving, see that your shoulder blades are not moving, and just give a light strokes to the abdomen. Breathing out पर focus करें. Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 8 9 4 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Keep your eyes closed और धीरे से पैरों को रिलीज कर दीजिए. विश्राम स्थिति में बैठ जाए. Okay, so now we will go for the pranayams part. Let us be ready for Bhastrika pranayam. Hands in, sit in Vajrasan. Those who are not comfortable, Sukhasan, hands by the side. Let us do 10 strokes first. Okay, count के साथ जाए. आप सभी को पता है breathe in, breathe out actively करना है. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. Go for the second round on your own along with me. 15 करेंगे. Start. Relax. Release your acid. Keep your eyes closed. Sit in Sukhasana. Hands in Dhyan Mudra. Let us do बाह्य प्राणायाम. हाथों को ऐसे रखो. 3 बार करेंगे. सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, पूरी सांस बाहर,
चिन लॉक करें, एब्डोमेन लॉक करें, मेंटेन करना है, सांस को नहीं लेना है, मुंह और नाक बंद है। सांस लेने के लिए अब गर्दन सीधी करें और धीरे धीरे नाक से ही सांस लें। So that's the first round of Bahy Pranayam. Let's go for the second. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, complete. Chin lock and abdomen lock. Hold the breath out. Try to keep the mouth and the nose closed. Consciously, do not breathe. Now gently raise your head up and gently breathe in. Last round करेंगे. सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर. Chin lock, abdomen lock, hold. Slowly release your chin lock and straighten up. Breathe in naturally. Maintain your posture. Let's be ready for the relaxing pranayam. 3 rounds of Brahmari pranayam. हाथों को पद्म मुद्रा में रखें, बैक स्ट्रेट. हमिंग भी साउंड, भौरे की गुंजन की आवाज हमेशा सांस को भरने के बाद ही. सांस छोड़ते हुए गहरी सांस ले. Chant 3 omkars. Breathe in full. देर के लिए शांत बने रहे और वाइब्रेशंस को महसूस करें. Now rub your palms. Massage your face. Again rub your palms. Move on your entire body. एक बार और हाथों को रब करें, चेहरे पर रखें. हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें. Okay friends, so we end our session